एक अच्छे नेतृत्व प्रदान करने वाले का, एक अच्छे एकेडमिशियन बनने का। मुझे अभी याद है कि 3-4 दिन पूर्व मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वंदना तुम क्या काम कर रही हो, और हमने पूछा कि पहले आप बताइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं लैंग्वेज ज्योग्राफी पर काम कर रहा हूँ। और फिर हम लोगों की बहुत सारी बातें लैंग्वेज ज्योग्राफी के बारे में बात हुई। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ। और फिर ये योजना भी बनी कि आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। लेकिन उसके बाद पता चला कि निरंतर सरसुंदरलाल हॉस्पिटल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोविड की जंग वो लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज वो निकल जाएंगे, निकले भी वो। लेकिन पुनः जो छपरा का दुलारा था, बिहार के छपरा जिले से जिनका जो संबद्ध थे, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां से निकलते हुए पूरे भारत की यात्रा करते हुए वो हम सबों के बीच से विदा ले लिए। हम लोग आगे उनकी चर्चा करेंगे, अपने भावों को रखेंगे, क्योंकि इस सभागार में उनके मित्र भी हैं, उनके रिसर्चर शोधकर्ता भी हैं, और हमारे अपने संगठन के कुछ दायित्ववान लोग हैं जो हम सबों ने साथ साथ कार्य किया था उस दौरान। तो उससे पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है उनकी स्मृति को, उसे हम सभी देखते हैं पहले। जी धन्यवाद। With heavy hearts and in a severely devastating situation, we painfully convey that we lost our dearest one, Professor Ravi Shankar Singh, a professor of geography at Banaras Hindu University, who due to corona infection was admitted to the intensive care unit corona ward SS Hospital of the Banaras Hindu University. However, despite all the medical care and emergency services, Professor Ravi ultimately passed away on the 21st of April 2021, morning at 10:50 a.m. When devotees Hindu were busy celebrating the birthday festival of Lord Ram, Ram Navami. Due to the dreadful crisis of the pandemic corona in the Banaras region, even close friends and relatives could not visit to attend rituals. Professor Ravi left behind his suffering wife, Dr. Pratibha, and his only lovely son, Agast Aditya. Professor Ravi was awarded the degrees like BA Honours in 1991 from BHU, MA in 1993 from JNU, MPhil in 1996 from JNU, PhD in 2000 from JPU, and D.Litt in 2020 from BHU. Under his guidance, 8 PhD theses were awarded and 4 were in progress, later awarded under the guidance of other colleagues. As an expert and special invitee to international seminars, he visited the USA, China Republic, Sri Lanka, and Poland. During his study period in the MA and MPhil courses at CSRD, Center for the Study of Regional Development, majoring in geography at Jawaharlal Nehru University from 1991 to 1996. Ravi lived in Narmada Hostel with his roommate Mr. Nirmal Kumar Azad and 4 other intimate classmates as neighbors: Mrityunjay Mohan Jha, Mazhar Azif, Bharat Dhaya, and Sarfaraz Alam. Ravi was an activist, nationalist, and culturally awakened person for the national cause, resulting in his fierce association with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, All India Students' Council, where he also served as its General Secretary at JNU. His employment career started as a lecturer in geography on 26 December 1996 at Rag Farhad
Government Degree College at Chembalang, Arunachal Pradesh from 1996 to 2001, followed by joining on 6th March 2001 as a lecturer at Kisan PG Degree College at Bahraich, Uttar Pradesh from 2001 to 2005. Finally, Ravi returned to his alma mater and joined as a Reader Associate Professor in the Department of Geography, Banaras Hindu University on 29th October 2005. He was elevated to full professor on 29th October 2011. He has also served as an adjunct professor at the Bhojpuri Research Center at Banaras Hindu University. As a prolific writer and researcher, his publications include 1 monograph, 7 edited anthologies, 103 research papers, 25 book reviews, and 6 appraisal reports on cultural geography under the umbrella of IMSA from 2004 to 2022, presented in the International Geographical Congresses. He also organized a few national and international seminars at Banaras Hindu University. Professor Ravi's contribution to institution building has been enormous. He was a member of several professional bodies of geography in the country. Professor Ravi's contributions to academic extension activities were no less remarkable. He has served as a research methodology expert on the ICSSR committee in New Delhi. He was also the visitors nominee in JNU, New Delhi from 2019 to 2021, a member of the Higher Education Council, Uttarakhand in 2017, the treasurer of the National Geographical Society of India from 2018 to 2021, an academic advisor of the United States India Educational Foundation in 2015 to 2016, and the secretary of the Institute of Indian Geographers, Pune from 2013 to 2019. He had also served as a consultant to 2 major research projects of the Ministry of Culture, Government of India. His obituary was published in all the national journals of Bharat India and 2 journals from England and Japan. मैं प्रोफेसर राणा प्रताप बहादुर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में भारतीय संस्कृति एवं धरोहर अध्ययन का प्रोफेसर रहा हूँ, जो 2016 में रिटायर हो चुका हूँ। और प्रोफेसर रविशंकर सिंह जो हमारे छात्र भी रहे हैं, सहकर्मी भी रहे हैं, शोध छात्र भी रहे हैं, साथ लेखक भी रहे हैं और मेरे दामाद भी रहे हैं। उनकी उम्र 3 साल बाद हो गई और इस तरह से कड़ी टूट गई। अब उनको उसी याद में, उसी श्रृंखला में PHU में भी एक कार्यक्रम हुआ था लास्ट ईयर, तो कल ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं MPhil किया था और वहाँ पर अखिल भारत विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी रहे थे। तो उसके याद और उनके उस कार्यों को देखते हुए उनके पुराने सहपाठी जो कई वहाँ डिस्ट्रिब्यूशन प्रोफेसर आ गए, उन्होंने वो कार्यक्रम रखा है। तो मेरा इसमें ये है अपनी जो संवेदना व्यक्त करनी है कि व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा लॉस बहुत ही हुआ या सभी समाज का लॉस हुआ, या भूगोल जगत में संस्कृति और भारतीय दर्शन को लेकर जो नई धारा प्रारंभ की गई थी, जिसका श्रेय रविशंकर सिंह को जाता है, और वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो भी सामग्री पाले की थी उसको लेकर के हम लोग आगे का प्रयास कर रहे हैं।
तो उसी दिशा में इस तरह का भी एक कार्यक्रम होगा कि सामाजिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर लोगों के बीच में बातें रखी जाए। तो इसमें दूसरी बात ये करनी है कि अभी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, अमेरिका और इजराइल के सहयोग से कर रहे हैं। जो पुस्तक है उसकी टाइटल है सेक्रेड हेरिटेज एंड पिलग्रिमेजेस इन सिटी, अर्थात वह जो पवित्र स्थल है पूरी दुनिया में और जहाँ पर तीर्थ यात्रा की जाती है, तो उस किताब को हम समर्पित कर रहे हैं प्रोफेसर रविशंकर सिंह को। और उसमें ये प्रयास से किया जा रहा है, एक चैप्टर लिखा जा रहा है कि कैसे रविशंकर सिंह ने तीर्थ यात्राओं के चेतना को छोड़कर उनको दुनिया के सामने रखा जाए, यह एक प्रयास किया था। और ये कहानी लगभग 30 साल पहले शुरू हुई थी और बहुत आगे तक चली, जिसमें विभिन्न देशों के स्कॉलर्स प्रोफेसर रविशंकर सिंह के साथ और हम भी सदा साथ रहे, चलती रही है। तो इसमें यह है कि यही एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हम देना चाहते हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर तो कोई शब्द नहीं है जो इस दुख को व्यक्त किया जा सके। और हमारे जवान के जो छोटे भाई हैं रविशंकर सिंह, अन्य इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं और ये कार्यक्रम इस तरह से चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा पुनः जो हम उनके किए हुए कार्यों, बताए हुए रास्ते और शोध की दिशाओं को एक नया आयाम दे सकते है कि यह जीवन की रीत दृष्टि बस पीछे ही जाती है, जो जीवन में नहीं बस याद उसी की आती है। आज वह दिवस है, आज महावीर जयंती है और मुझे याद है जिस दिन उनका प्रयाण हुआ था उस दिन रामनवमी थी और कोई न कोई विशिष्ट तिथि उस दिन आ ही जाती है। और आज यह जो सभा है उन्हीं की स्मृति को निवेदित है, प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी को निवेदित है। और आज साथ ही बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का भी विषय है और आत्मबल का भी विषय है कि जिनके नेतृत्व में हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सपने को हम लोगों ने देखा और राष्ट्र के स्वरूप को के चिंतन का जो सपना देखा, उस समय के हमारे विभाग संगठन मंत्री जो आज भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, आदरणीय सुरेश जैन जी, आज वह उपस्थित हैं। और अपने प्रवास में से जब उनको पता चला, जब प्रेम भाई ने बात किया उनसे, तो उन्होंने अपने समय को निकाला और प्रवास में से कुछ समय को अहमदाबाद के प्रवास पर थे और उसके बाद वहाँ से उन्होंने प्रयास किया कि मैं किसी भी तरह दिल्ली पहुँचूँ और रविशंकर जी की स्मृति को मैं नमन करूँ और कुछ बातें कहूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय सुरेश जैन जी भाई साहब को कहूँगी कि आएँ और पुष्प को निवेदित करें, साथ में ब्रिजबिहारी सिंह जी, मजहर आसिफ जी और जो भी हमारे जयंत त्रिपाठी जी भाई साहब और सब आएँ। और प्रेम भाई साहब कहाँ हैं, आप भी आएँ जी। सुभाष जी कहाँ हैं? सुभाष क्योंकि राणा पीवी सिंह मात्र एक साधारण प्रोफेसर के रूप में नहीं, यह देश उनको उनके सांस्कृतिक अध्ययन के लिए तीर्थों के बारे में, मंदिरों के बारे में, यानी कि पूरे कल्चरल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी के बारे में जानता है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रविशंकर सिंह के जाने से एक कड़ी टूट गई है, लेकिन मुझे लगता है
कि हम एक हुए थे, एक ही हैं, अब एक ही हमको रहना है, करना है उद्घोष भाव का, मौन नहीं अब धरना है। हम लोगों को मौन नहीं रहना है। रविशंकर जी ने जितने कार्य किए और उनके निर्देशन में जितने कार्य हुए और उन्होंने जिस प्रकार का पथ प्रदर्शन का कार्य हम लोगों को दिया है और करने के लिए ऐसा भाव प्रेरित किया है, हम सब उसको लेकर के आगे जाएंगे। और इस कड़ी में मैं सोचती हूँ कि उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं, हम सबों उनके साथ, उनके मित्रों के, उनके सहपाठियों के, उनके दोस्तों के, वो सभी एक एक कर आएँ। और सबसे पहले मैं मजहर भाई को ही मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी कि मजहर भाई आप शुरुआत करें कि यह वह दौर था जब सभी लोग साथ साथ काम करते थे और भारत माता की जय के हम लोग नारे भी लगाया करते थे और साथ ही पढ़ाई भी करते थे, कार्यकर्ता भी थे, सब कुछ थे। तो मजहर भाई आप आए। आदरणीय सुरेश जैन जी, मेरे भाई गिरीश बिहारी जी, त्रिपाठी जी, मेरे छोटे भाई प्रेम शंकर सिंह जी, उनकी फैमिली, मेरे और यहाँ के जो शिक्षकगण हैं और मेरे छात्र और छात्राएं, सबों को नमस्कार। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। ये ऐसा तथ्य है और सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। भाई रवि से मैं 35 सालों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने, भाई रवि ने, वंदना जी ने, गिरीश बिहारी जी ने, ये आदरणीय सुरेश जैन जी बैठे हुए हैं, उनका उंगली पकड़कर हम लोगों ने चलना सीखा था इसी कैंपस में। और आज भी उनके उंगली पकड़कर ही चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हैं। यहाँ जो भी हैं सब इनकी छत्र छाया है। हम लोग कुछ नहीं थे जब JNU ज्वाइन किया था। आदरणीय सुरेश जी ने हम लोगों को शरण दिया और हम लोगों को सांच कर, ढाल कर यहाँ तक इस स्थिति में पहुँचाया। मैं शायद फैमिली को छोड़कर रवि जी का सबसे अच्छा और सबसे घनिष्ठ मित्र रहा हूँ। उन्होंने भी 1996 में कैंपस को छोड़ा, मैंने भी 1996 में कैंपस को छोड़ा। मैंने 90 में विद्यार्थी परिषद की सेवा शुरू की थी, उन्होंने 92 में शुरू की। मैं यहाँ से गुवाहाटी गया, वो चांगलांग गए। गुवाहाटी में 20 साल था। चांगलांग जो अरुणाचल प्रदेश में है, आज चाइना बॉर्डर पर है। मैं गुवाहाटी से वहाँ भी जाता था उनके यहाँ। जब भी वो घर आते थे गुवाहाटी रुकते थे, मेरे यहाँ रुकते थे। जब भी उनको कामाख्या दर्शन जाना होता था, हम लोग दोनों और भाभी जी है, तीनों आदमी हम लोग जाते थे। जब उनका देहांत हुआ, मैं भी कोरोनाग्रस्त था, मेरी पत्नी भी। तो मैंने फेसबुक पर लिखा था। उनके देहांत के 7-8 दिन पहले की बात है। उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन किया मुझको और मेरा हाल चाल पूछा था उन्होंने, और कहा था कि मजहर भाई कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाइए। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हूँगा, मैं घर पर ही जो कर रहा हूँ
क्योंकि हॉस्पिटल जाना हमको अच्छा नहीं लगता और हमारे कैंपस से जो भी हॉस्पिटल गए हैं वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और मैं अभी कोरोना ग्रस्त ही था कि उनके ससुर जी जो है ये भी मेरे गुरु जी हैं, गुवाहाटी मेरे यहाँ जाते थे, मैं इनके यहाँ जाता था। हमारे अभी मैं इनको गुरु जी ही बोलता हूँ, बहुत उनका स्नेह रहता है हमारे ऊपर। कि एक यात्रा थी, जाते तो सब कोई हैं, लेकिन भाई रवि आप जैसे गए वैसे कोई नहीं जाता। मैं भी 1971 का मेरा भी जन्म है, उनका भी जन्म 1971 का ही है। एकेडमिकली बहुत ही साउंड थे, बहुत सारी चीज़ें खासकर कल्चरल ज्योग्राफी पे, लैंडस्केपिंग पे, ये आजकल जो हम लोगों ने अपने अर्बन लाइफ को एक्सेप्ट करके जो रूरल लाइफ है उसको छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पे आंगन होते थे, ओसारे होते थे, चौखट होते थे, हम उसको लीपते थे, पड़ोड़ते थे। ये इस सब पर उनका बहुत अच्छा काम था और इसी पर ही काम कर रहे थे। उनको एक जो किताब उनकी आ रही थी इसी पर ही आ रही थी। उन्होंने कहा था कि मजहर भाई आप भी चूँकि आप देहाती आदमी हैं, देहात में रहने वाले हैं, तो आप भी जो है ये आंगन, ओसारा, दरवाज़ा, दूरा, लेपनी, पोतनी, इस सब पर भी एक अपना आर्टिकल लिख के दीजिएगा, हम इसमें रखेंगे। संगठन के हिसाब से हमारे बड़े भाई ब्रिज बिहारी जी बैठे हुए हैं, ये अध्यक्ष हुआ करते थे, भाई रवि जनरल सेक्रेटरी थे, हम लोग तो कार्यकर्ता थे। अब उस वक्त का माहौल ऐसा नहीं था। हम जो है वो 12 बजे 2 बजे रात में जो है मैं और रवि वो कांख में पोस्टर लेकर और निकलते थे पोस्टर लगाने के लिए। चूँकि पहले लगाने से लोग पोस्टर फाड़ दिया करते थे, तो हम 2 बजे के बाद लगाते थे पोस्टर। फिर वो साबरमती आए, साबरमती में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे संगठनात्मक बहुत सारे चीज़ें हम कर पाए यहाँ JNU में। और आज JNU में जो स्थिति है वो भाई रवि जैसे कर्मठ, ईमानदार कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय सुरेश जी जैसे मार्गदर्शक लोगों की वजह से आज हम जो भी हैं वो हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, उनके भी 2 बच्चे थे, 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, उनकी फैमिली भी हमारी पत्नी के साथ जो अच्छा संबंध था। जब भी बनारस जाते थे उनके यहाँ जाते थे, 80 घाट पर बैठना, रात रात तक बैठना, रसगुल्ले खाना और गुड़ वाली, तो ये सब चीज़ें पुरानी यादें हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको जो है कामना करता हूँ कि जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, हमारी बात सुन रहे हों, ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ उनके बच्चों को लेकर, भाभी को लेकर। मैं गुरुजी से अभी हमारी 7 दिन 8 दिन पहले बातचीत हुई थी, तो अभी भी कुछ समस्याएं हैं जो BHU में चल रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये समस्याएं भी दूर होंगी। और अभी तो हमारी बहन वंदना जो है बहुत बड़ी हो गई हैं। उस वक्त भी हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, 10+2 करके आए थे। तो प्रेम नहीं है हमारे, प्रेम शंकर झा भी नहीं है, शायद आना चाहिए था उनको। ये हम लोगों के ग्रुप थी जो हम लोग हर वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी समय हम अपनी बात करते थे, एकत्रित होते थे। तो मैं अपनी तरफ से कामना करता हूँ कि ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति 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 ही। नमस्ते। आशा के साथ आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और बाकी आप अपना ये जो समय है, तो मैं ऐसा विश्वास भी नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि मैं ये हमारे अग्रज तुल्य रहे हुए,
प्रोफेसर रवि सिंह। इनके जो छोटा भाई हैं, इनसे सेकंड नंबर पे प्रोफेसर प्रेम शंकर सिंह। ये हमारे पीएचडी जब मैं डीयू से कर रहा था उस समय हमारे हॉस्टल में ये रूममेट भी रहे हुए। इवन बाद में रूममेट भी थे हॉस्टल में जब थे उसी समय 2 रूममेट होते थे, पीएचडी कर रहे थे, तो ये मास कम्युनिकेशन से मीडिया कर रहे थे, जर्नलिज्म डीयू से। तो ये संजोग की बात है कि ये हमारे रूममेट हो गए। फिर उसके बाद परिचय हुए या जैसे भी। उस समय ये जो प्रोफेसर राणा सिंह जी थे, ये इतने रिनाउंड रहे हुए हैं, ये इंडिया तो नहीं इंटरनेशनल लेवल के थे। उसके बाद इनके जस्ट सेकंड जो भाई थे वो डीयू में ही ज्योग्राफी में ही प्रोफेसर आरवी सिंह, उनका भी नाम उनसे सेकंड, ये तो नंबर 1 थे, ये सेकंड। तो हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे, मैं स्टीफेंस में पढ़ाई कर रहा था उस समय ग्रेजुएशन में, तो प्रोफेसर आरवी सिंह एक हॉस्टल के वार्डन थे। तो ये हमारे कॉलेज से होते हुए डीयू का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट थे हमेशा बहुत हाइट थे, अच्छे थे। हम लोग उस समय कॉलेज में थे, नहीं पहचानते थे। जब ये बाद में ये प्रेम शंकर जी जब रूममेट बने थे, जब हम लोग एमए के बाद एमफिल कर रहे थे डीयू से, उस समय जब ये क्लियर हुए, धीरे धीरे बात हुई, तो पता चला कि ये आरवी सिंह थे, ये ज्योग्राफी में है, हमारे कॉलेज से जाते थे ऐसे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये प्रोफेसर पीवी सिंह जो थी, जो इनके ससुर भी रहे। तो इस तरह से इनके जो भाई प्रोफेसर जो रवि सिंह जो है, इनके बड़े भाई हुए। ये उस समय बहराइच में पोस्टिंग, सबसे फर्स्ट पोस्टिंग इनकी लेक्चरशिप में अरुणाचल प्रदेश में था। अरुणाचल से बहराइच में थे। जब हमारी परिचय हुआ था उस समय ये अरुणाचल प्रदेश में। इवन ये उस समय बहुत ही स्ट्रगल दौर में थे कि छोटे जगह में गए हुए थे। ये चाहते थे कि हमारा कहीं एब्जॉर्प्शन कहीं अच्छे जगह हो, क्योंकि एजुकेशनली बहुत ही साउंड थे, अच्छे जगह से पढ़े लिखे हुए थे, तो सभी चाहते हैं कि अच्छा एक्सपोजर मिले। तो ये दिल्ली में डीयू में भी बहुत सारी पोस्ट निकली, तो वो इंटरव्यू देने के लिए ये सर आते थे, भैया आते थे हमारे। तो हमारे हॉस्टल में ही रुकते थे, हम लोगों के साथ रुकते थे। इतनी फ्रेंडली, इतनी व्यवहार, इतनी सरल स्वभाव, इतनी डाउन टू अर्थ रहने वाले, सोच भी नहीं सकते थे कि जो इतनी व्यवहार, इतने एकेडमिशियन। उस समय भी रीडर थे, ये बहराइच में भी रीडर पोस्ट पे थे, लेकिन 1% भी फीलिंग नहीं, बड़े छोटे किसी भी तरह का, पूरी तरह से फैमिलियर। और वहाँ से डीयू में भी इंटरव्यू 2-3 बार ये आए। इनके ससुर जी भी विदेश जाते थे, इंटरनेशनल यूएसए गए, वो हमारे हॉस्टल में रुक के गए, स्टे करके गए, हम लोग के साथ रहे। वे भी इतने फ्रेंडली होके गए, इतने बड़े एकेडमिशियन होते हुए भी। तो ये और एकाएक जो है फिर बीच में हमारी कम्युनिकेशन गैप है। जब हमने डीयू में बाद में हमने स्कूल में भी ज्वाइन कर लिया था, डीयू में भी केएमसी में पढ़ाया, तो बाद में प्रेम शंकर जी भी चले गए मीडिया में, हमारी पीएचडी भी हो गई, तो फिर ने कम्युनिकेशन गैप हो गया। तब तक भैया का 2005 में पीएचयू में ऑलमोस्ट रीडर पोस्ट पे पोस्टिंग हो गई। उसके बाद हमारी 8-10 साल प्रेम शंकर से भी मुलाकात थोड़ी सी कम हो गई, फ़ोन चेंज हो गया, इस तरह से कम्युनिकेशन सब बिजी हो गए। अभी 2018 10-12 साल के बाद एकाएक मेरे सेकंड ब्रदर थे, वो LIC में मैनेजर है, तो उनके जो बेटे हैं उनको पढ़ाने 12th में एडमिशन लेने के लिए बनारस में जाना था, BHU में, वाराणसी में किसी स्कूल में लेना था। एकाएक उनके पटना से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई है वहाँ पे जान पहचान, हमें कौन सा स्कूल बेस्ट है ऐसे। तो एकाएक मुझे छुट्टी, इतना मुझे मालूम हो गया था कि भैया का जो है पोस्टिंग वहाँ पे हो गई है रीडर में, BHU में। उसके बाद बात नहीं थी बस। इवन इनके मदर से भी, मदर भी हमारे साथ रही हुई है, फैमिली, इतनी फैमिली अटैचमेंट कि कोई भी बड़ा भाई जिस तरह से अपने सगे भाई में अटैचमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार से। और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, किसी भी रूप में भी नहीं। तो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन 10-12 साल ये गैप हो गए। जब वो सेकेंड ब्रदर वो अपने फैमिली के साथ गए कि वहाँ पर, तो मैंने बस इतनी सी, फ़ोन नंबर भी नहीं था हमारे पास, चेंज हो गए थे, उसने 10-12 साल हो गए थे गैप।
तो मैंने बस उनको ये बताया कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है उनकी पोस्टिंग, और आप मेरा नाम लीजिएगा, आप एक बार मिलिएगा, जाना तो है ही आपको एडमिशन के लिए। और वो खोजते खोजते BHU पहुंच गए, फैमिली के साथ गए हुए थे, और उनसे मिलने के गए और नाम डिपार्टमेंट में ही मिल गए। फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, उसी समय बात हुई, और उसके बाद तो जितनी गाइडेंस हुए उनको दी, और उसके बाद तो मेरी सारे फेस्टिवल में सब कुछ में मुझसे बात होती थी। लेकिन एकाएक जो है, इतने सरल सादगी स्वभाव, इतने व्यवहार, इतने टैलेंटेड व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार की तो कोई बात ही नहीं। इसीलिए कहा भी गया है जीवन में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति को अपने टैलेंट के ऊपर, टैलेंटेड इतने थे कि कहना ही नहीं, और कोई भी सामने वाला ये नहीं कह सकते कि इतने टैलेंटेड है, इतनी उनके नेचर में इतनी व्यवहार, इतने सारे बुक्स लिखे बाहर भी। तो फिर जो है 2021 में एकाएक फिर हमारी बात होती थी, मैसेज भी होते थे, इतनी अटैचमेंट। उसके बाद से वो बाद में फोन कि मैं तो दिल्ली जाता रहा, तो तुम मुझे घर का एड्रेस बताना, इवन मैं UPSC में भी जाता हूँ, क्वेश्चन बनाने के लिए जाता हूँ, वो भी फ़ोन करते थे, इतनी कभी भी जब से फ़ोन नंबर मिल गया उनको, तो इतनी, यानी बाद में इस तरह से इवन मुझे प्रेम शंकर से ही बीच में गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, इनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए, इनके छोटे भाई से हमारी मुलाकात होने लगी और बड़े भाई। तो एकाएक हमें, लेकिन जो अपनापन होते हैं जो अपने आदमी की, तो एकाएक मुझे मालूम भी नहीं था ये घटना, लेकिन BHU के एक स्टूडेंट जो टीचर थे उन्होंने एकाएक बताया कि ये तो इतने पॉपुलर थे BHU में भी कि इनकी फ़ोटो देखकर उन्होंने बताया कि ये इनकी तो ऐसे ही से हो गई है। तो ये है हमारी इनके साथ, और ये आगे बहुत ही आगे बढ़ते, आगे यदि ये अपनी इस प्रोफेशन में रहते हुए बहुत ही, और इतने कम एज में आपने सारी इनकी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी ही है, इनकी अचीवमेंट्स, और इतने कम समय में, और अभी भी 10-12 साल सर्विस तो अभी भी थी, बहुत ही आगे जाते। और लेकिन भगवान को आज के समय में क्या है कि जो अच्छे व्यक्ति है वो ज़्यादा रह नहीं पाते हैं, नामंजूर था, और कोरोना में बहुत से ऐसे अच्छे लोग चले गए। क्या होता हूँ, मेरे भी एक जूनियर ही था यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट में, यहीं JNU में, सत्यमूर्ति प्रोफेसर, रीडर होंगे, रीडर से DU में हो गया था, DU से बाद इसमें आ गए थे। उस समय उनका भी हमारा जूनियर ही था। तो ऐसी घटना बहुत सारे पूरे देश में इस तरह की हुई अनहोनी, जो भुलाया नहीं जा सकता जीवन भर। उसमें ये भी हमारे भैया भी एक चपेट में आ गए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे उनके परिवार को, के सभी सदस्यों को आत्मबल दे। इस संकट की माँ, इनकी माँ पिताजी जीवित हैं, माँ पिताजी के लिए इससे बड़ा दुख तो जीवन में कुछ नहीं होता। ये किसी व्यवहारिक जीवन में, हम लोग तो संसारिक जीवन में जी रहे हैं, ये तो अद्वैत माया नगरी है संसारिक, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, हम भागने लग जाते हैं। ये संसार तो क्षणिक है, सारी चीज़ें नश्वर है, एक आत्मा ही अमर है। तो हम लोगों की यही है कि इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी इनकी आत्मा को शांति दे, और यही हमारी कामना है, उनके परिवार के सभी सदस्यों को शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद ललित जी, और आपने अपनी संवेदना व्यक्त की। हम सबों के बीच में प्राइम न्यूज़ के MD मोहसिन सर पधारे हैं। सर, आपका स्वागत है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में, इस अनुभूति वाले विषय में आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए संबल का काम कर रही है, और इसलिए आपका स्वागत है। प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी के, हमारे सर के जो मित्र रहे हैं, ब्रिज बिहारी सिंह, प्रोफेसर ब्रिज बिहारी सिंह जी, जो उस समय में ABVP यूनिट में भी थे, और हम सभी साथ में काम करते थे। मैं तो जूनियर थी, लेकिन छात्रा होने का मुझे हमेशा गौरव मिलता रहा और विशेष कार्य भी मिलता रहा। और आप अभी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपके माध्यम से हम उनकी स्मृतियों को साझा करेंगे।
आदरणीय सुरेश जी, हमारे मित्र त्रिपाठी जी, वंदना जी, मजहर भाई, जेएनयू हम लोगों की कर्म भूमि रही। रवि जी बोलते थे विद्यार्थी परिषद की परंपरा के अनुसार हम लोग जी के साथ ही बोला करते थे। हमें विद्यार्थी परिषद के मित्रों जिनके साथ हमने काम किया है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनके बारे में कहना, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। लेकिन रवि जी एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में हमने नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जो इस दिन पे उनकी डेथ एनिवर्सरी पे हमें कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारा छोटा भाई यूं चला जाएगा। हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब हम सब लोग, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, विशेष तौर पे सुरेश जी का मतलब यह है कि जितने कार्यकर्ता उस समय थे, जिन लोगों ने विद्यार्थी परिषद के जेएनयू में जो यूनिट आरंभ हुआ, जो संघर्ष विद्यार्थी परिषद ने झेला है, उसका नेतृत्व सुरेश जी ने किया है। और सुरेश जी ने एक एक रूम से एक एक विद्यार्थी को निकालकर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनाना, उसे इंटेलेक्चुअली साउंड करना काम था। और हम सबको यह लगता है कि आज ऐसे एक कार्यकर्ता जिसको सुरेश जी ने बनाया, जिनके साथ हमने काम किया, वो हमारे बीच में नहीं। हमारे 2 साल ऐसे गुजरे, लगभग 2000 मार्च में लॉकडाउन लगा 2020, लेकिन 20 से लेकर के 22 तक 2 साल ऐसे गुजरे, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, जिसे हम संक्रमण काल बोल सकते हैं मानवता के लिए, जिसमें किसी को कुछ पता नहीं था, कल क्या होगा पता नहीं था, कौन कब तक जिंदा है, कल रहे न रहे ये पता नहीं था। सब लोग डरे हुए थे। विशेष तौर पे एक तो ऐसा ये पीरियड आलम देखा है कि मुंबई, कलकत्ता शहर में रहने वाले लोग, जिनको आने जाने के लिए, क्योंकि सारी ट्रेन बंद थी, फ्लाइट बंद थे, बसें बंद थी, कोई सवारी नहीं थी, पैदल निकल लिए लोग। मतलब उस मंजर को याद करके एक लगता है कि हमने मानवता किस स्थिति में पहुंच गई थी। और उस कोरोना के संक्रमण काल में हमारे रवि जी चले गए। उस वाकये को याद करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर का माहौल एक बार फिर आ जाता है। लेकिन प्रकृति के नियम है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन जाना तो है। हाँ, वक्त जरूर इम्पोर्टेंट है, जाना हर किसी को है, लेकिन यूं इस उम्र में जाना निश्चित रूप से खलता है। हर किसी को जो उनको जानते हैं खलता है। मेरा तो खैर व्यक्तिगत तौर पे मैं 4 तरह से जुड़ा रहा हूँ रवि जी से। एक तो हमारी जन्मभूमि भी वही है जो उनकी जन्मभूमि है। हम लोग जब कभी भी बातें करते थे आपस में, तो भोजपुरी में बातें करते थे। भाषागत संबंध भी रहे हमारे रवि जी के साथ। विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया एक साथ, तो ये संबंध भी हमारा रहा। और तीसरा, हम लोग साबरमती हॉस्टल में रहा करते थे एक ही साथ। तो रवि जी का हमारे बीच में न रहना मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही खलता है, बहुत ही याद आता है। प्रेम शंकर जी है उनके छोटे भाई, मेरे भी छोटे भाई हैं। जेएनयू में ये भी काफ़ी दिनों तक थे, जब विद्यार्थी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शायद, उस समय इससे भी ताल्लुकात हमारे रहे, कंटिन्यूअस रहे। बातचीत हुई, जब बताया इन्होंने तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पाया। लेकिन उस बीच में इतने सारे हमारे जेएनयू के रहने
वाले दोस्त भी हमारे कंटेम्पररी इतने सारे कोरोना के पीरियड में भगवान के प्यारे हो गए कि लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। रवि जी का विद्यार्थी परिषद, मतलब विद्यार्थी परिषद के संगठन में हम लोग भी जुड़े थे, रवि जी की भी थे। रवि जी की एक विशेषता ये थी कि वो बहुत बढ़िया पोस्टर बनाया करते थे, जैसा कि वंदना जी ने कहा। अच्छा, उस समय मतलब पोस्टर बनाने के लिए पोस्टर वर्कशॉप हम लोगों का होता था, सारे संगठन का होता होगा, विद्यार्थी परिषद का था। स्कूटर पे जाकर के माननीय सुरेश जी पोस्टर के कागज़ लेकर आया करते थे, कालका जी से बनाने वाले भी लेकर के आया करते थे। और फाइनली रवि जी के जी में आता था कि सारा पोस्टर बना करके रात को 12-1 बजे तक बनाते थे। उसके बाद उसे चिपकाने के लिए निकलते थे, जैसा कि मजार भाई ने कहा। और फिर 3-4 बजे तक हम अपना चिपका करके फिर अपना पोस्टर लौटते थे। ये वक्त भी देखा है, ये संघर्ष भी देखा है। और विद्यार्थी परिषद के इस संघर्ष काल में हमारे रवि जी हम लोगों से 2 कदम आगे ही थे। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज संगठन भी रवि जी को भुला नहीं पाएगा, कभी भी भुला नहीं पाएगा। जेएनयू विद्यार्थी परिषद के संघर्ष गाथा में पहली पंक्ति में रवि जी खड़े हुआ करते थे विद्यार्थी परिषद। इन सारी बातों के साथ मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। अंत में रवि जी के, चूँकि प्रेम जी से जब कभी भी हमारी बातचीत होती थी तो प्रेम जी को रवि जी के बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में भी हमारी बात हुई कि कैसे, मतलब यह है कि किस उम्र के हैं, किस क्लास में बच्चे हैं, क्या है। क्योंकि हमारे अच्छे मित्र रहे तो ये जानना भी ये होता है आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए भगवान शक्ति दे, बच्चा आगे बढ़े। वैसे पिता होता है, बच्चे के लिए परिवार होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकृति के इस नियम में अब हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। मेरी रवि जी से लास्ट मुलाकात जेएनयू में एक सिलेक्शन कमेटी में आए हुए थे बतौर विजिटर नॉमिनी, तब हुई थी मेरे ख्याल से 2019 में, शायद 2019 में अरावली गेस्ट हाउस में यही बैठे थे। अब 2-1 घंटे बातें होती रही, काफ़ी दिनों बाद मिले थे। और 2020 अक्टूबर में मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, लास्ट बात हुई थी रवि जी से। मैंने ही कॉल किया था, बीच बीच में कभी कभी बातें करते रहते थे, तो लास्ट बात अक्टूबर में थी। अब आज वही, चाहे हम 25 साल बाद बातें कर रहे हो, चाहे 25 साल बाद मिले हों, हमारे बातचीत करने के अंदाज वही जोश, वही आदर, वही सम्मान, वही विद्यार्थी परिषद के लिए भी सम्मान, ये सारी चीज़ें। अंत में उनकी आत्मा को, आत्मा हिंदू की संस्कृति के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं है। जहाँ कहीं भी आत्मा है, उन यादों को हम तो याद कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति। निश्चित रूप से ब्रिज बिहारी भाई साहब वो यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, वो हमारी यादों में हैं, हमारी स्मृतियों में हैं। और हम जो भी कुछ कर्म पथ पर चलेंगे उनकी स्मृतियों के साथ ही चलेंगे, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को याद किया। मुझे याद आता है झेलम का 128 नंबर कमरा, मजहर भाई का कमरा, जिसमें भाई साहब आते थे और होता था कि क्या होगा, हमारी कार्य पद्धति क्या होगी। तो लोग कहते थे कि आओ चुपचाप सुनो पहले चीज़ों को। और अक्सर जब बहुत शुरुआत के दिनों में सुदर्शन जी भी आते थे तो बस हम लोग बैठते थे और पता नहीं होता था और जलेबी खाते थे, और बहुत बुद्धि नहीं थी कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है। भाई साहब ने हम लोगों को संवारा, हम लोगों को बताया कि काम करने की पद्धति कैसे होती है,
कैसे कार्य किया जाता है, और यहाँ पर एक नींव उन्होंने मजबूत की और आज वो हमारे यहाँ पर बीच में हैं। तो सबसे पहले चूँकि प्रेम जी भी आ गए हैं, प्रेमनाथ झा जो यही लिंग्विस्टिक सेंटर के विद्यार्थी रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कपूर के विद्यार्थी रहे हैं और संयोग से मेरे पतिदेव भी हैं, तो उनकी भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो मैं कहूँगी कि छोटी सी बात वो यहाँ रखें, तब भाई साहब को हम लोग बोलेंगे बोलने के लिए, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है। प्रेम। आप सबों को सादर प्रणाम। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब को विशेष रूप से नमन कि अपना समय निकालकर हमारे पास आए। ये इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे रवि जी की स्मृति में, ये काफ़ी एक कठिन समय है अपने उद्गार को व्यक्त करने का, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए ये सोचना भी कठिन है। और जिस प्रकार से सभी लोगों ने बताया कि स्मृति शेष है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं, ऐसा कोई एकेडमिक से लेके विद्यार्थी जीवन की जो हलचल हुआ करती थी, सब जगह रवि जी थे। हर जगह रवि जी का चेहरा वैसे ही याद आता है। इसके पहले हम लोगों ने इनकी स्मृति सभा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया था, उसमें भी वहाँ पे था मैं, और उसी के इस साल यहाँ पे आयोजन करने का प्रयास प्रेम जी ने किया, और मुझे खुशी है कि अपने सारे लोग यहाँ पे आए। मैं उनके बारे में इतना ही जानता हूँ कि वो एक कुल मिला के 360 डिग्री के व्यक्ति थे। जहाँ तक विद्यार्थी का सबसे पहला काम तो अकादमिक होता है, एकेडमिक होता है, उसमें वो एक्सीलेंट थे। उनकी एक्सीलेंसी पूरे हिंदुस्तान जानती है। बहुत कम समय में प्रोफेसर बने, और आज वो मेरे ख्याल से आज कहीं न कहीं वाइस चांसलर के रेस में होते या वाइस चांसलर होते। मेरी अंतिम मुलाकात उनसे है जब वो एक बहुत बड़ा सा सेमिनार हुआ था जो कई विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर किया गया था, उसी में उन्होंने मुझे बुलाया था। उसके बाद फिर ये ख़राब समय आया और पूरा बनारस स्तब्ध हो गया इस न्यूज़ से, रवि जी के न्यूज़ से। मैं उस समय बनारस में ही था, समझ में नहीं आ रहा था, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो के वापस गए थे। उनको जो अटेंड कर रहे थे डॉक्टर, वो डॉक्टर साहब को भी पता नहीं था कैसी स्थिति, और वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत थे कि अब वो ठीक हो गए, सब कुछ हो गए। रवि जी अंतिम समय में डॉक्टर साहब की एक पुस्तक थी, उसका उन्होंने रीराइट किया था और उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री पे लिखा था, और जाते जाते उसकी पुस्तक को उन्होंने रीराइट करके छपने योग्य बना के दिया था, और पूरे दुनिया में वो पुस्तक आज बहुत प्रचलित है। कोरोना पे ही लिखी गई पुस्तक थी वो। तो जाते जाते भी वो बड़ा कार्य करके गए। एक तरफ तो वो, जैसा सभी बिहारी जी ने कहा, कि संगठन का बड़ा अच्छा काम करते थे, धोती कुर्ता पहन के हम लोगों के सामने आते थे। अक्सर वो किसी भी मीटिंग में धोती कुर्ता पहनकर आते थे। इसी प्रकार से बिल्कुल युवाओं के साथ, बीए के जो हमारे बच्चे थे उनके साथ भी उनका उसी प्रकार का सहयोग था। कार्यकारिणी अधिकारियों के साथ भी उसी प्रकार का सहयोग था, और बहुत अच्छे से मंथन करते थे, विचारों का मंथन करते थे। चुनाव के वक्त में कौन कहाँ पे किस सीट से किस प्रकार की होगी, बिल्कुल एक जो सटीक वो निर्णय लेते थे सबके साथ मिलकर। और सबको, वो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी ग्रुप से या किसी भी गैंग से ऊपर थे। सब उनको चाहता था और सबको वो चाहते थे। इस प्रकार के व्यक्ति थे। यहाँ पे ज्योग्राफी सेंटर में उन्होंने काफ़ी नाम किया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर वो यूपी में आए, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक से एक काम किया। कलकत्ता में उनको एक विशेष उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने उनका पूरा एक भूगोल के सर्कल में, ज्योग्राफी के सर्कल में बहुत ज़्यादा वो कम समय में अच्छा कर गए थे। और जैसा कि बिहारी जी ने अभी तुरंत ही कहा कि हम लोगों को पता नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को किसी को पता नहीं, कि
कब क्या होने वाला है, यही एक जो एक भ्रम है या एक जो विषय है, रहस्य है, ये हम लोगों से ऊपर की विषय है। लेकिन जितना भी लाइफ उन्होंने जिया, उन्होंने पूर्ण रूप से जिया, सबके साथ जिए, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि अपने लिए तो सब जीता है, लेकिन अपने से ऊपर उठ के भी जीना चाहिए, सबके लिए जीना चाहिए। वो काम भी करते थे और आज उनको याद करते हुए, वो हमारे बीच में नहीं है, इस बात का तो बहुत दुख है, लेकिन उनको याद करते हुए खुशी भी हो रहा है कि हम उनको याद कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक ऐसे विराट व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में हम जितना कहते जाएं उतना ही कम है। वैसे भी यदि आप इतिहास देखें तो जिसने भी बड़ा काम किया उसकी आयु बहुत ही कम रही, और इतने कम समय में, इतने लघु समय में इतना विशाल कार्य कर जाना और एक लिगेसी को अपने पीछे छोड़ जाना, वो रवि भाई की काबिलियत थी और हम सबों को उस विषय पर गर्व करने का मौका मिल रहा है। मैं सोच रही थी कि आदरणीय भाई साहब को बुलाऊं, लेकिन उससे पहले रवि जी के ही एक विद्यार्थी आदित्य जी, जो DRDO में साइंटिस्ट हैं मेरे ख्याल से, आदित्य पटेल जी, और आप यहाँ आ गए हैं, तो मुझे लगता है विद्यार्थी की जुबानी अपने गुरु की कहानी को सुनना चाहिए। मेरा नाम आदित्य पटेल है। मैं वर्तमान में DRDO में हूँ, बट मैं आदित्य पटेल हूँ और 2007 से 2010 तक मैं सर का विद्यार्थी रहा BHU में, जियोग्राफी डिपार्टमेंट में, और 2017 बैच में सिविल सर्विसेज क्लियर की, और राइट नाउ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, अबाउट टू बी डिप्टी डायरेक्टर एनी डे। 2017 बैच हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ बट मैं सिविल सर्विसेज से हूँ। तो वही, तो जैसे अभी तक मैं लोगों को सुन रहा था कि सर लोगों को, जैसे हमारा जो सर का एक्सपोजर था, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे इतना कुछ पता नहीं था कि सर एकेडमिकली इतना साउंड है, इतने स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोगों को बस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, बस ये है कि बस पढ़ो कुछ चलो। लेकिन एक चीज़ जो उनमें सबसे खास थी, जो मतलब जैसे मुझे पता चला कल कि आज यहाँ आना है, तो मैं तुरंत ही अपने सारे चीज़ें कैंसिल की, एक जगह जाना भी था मुझे, कैंसिल की। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि सर का जो सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, वो था उनका एक तरह से ड्रीमर होना। क्योंकि जब मैं बनारस में पढ़ता था, पढ़ने में थोड़ा ठीक था, लेकिन जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आया तो मेरे को अंग्रेजी एक भी समझ में नहीं आता था। मतलब प्योर हिंदी मीडियम था, प्योर हिंदी मीडियम। सर तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैं इतना परेशान हो गया कि एक टाइम आया कि बंद करके ऐसा करते चलते, अब नहीं हो पाएगा मास्टर से यहाँ से। तो मैं उसी टाइम गया था बनारस, तो सर से मिला, तो सर ने समझाया है बात कि यार ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, तुम भाग के क्या करोगे। तो पूछा उन्होंने कि तुम बनना क्या चाहते हो। पहले पूछा पिताजी क्या करते हैं, मैंने कहा खेती करते हैं। फिर तुम बनना क्या चाहते हो, तो उनको आइडिया लग गया था कि जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर ISI बनना चाहते हैं, कि भाई सिविल सर्विसेज और कुछ खास सोचते हैं। मैंने बोला कि IAS बनना चाहता हूँ, मैं भी सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। तो बोले ऐसे भाग के जाओगे, उन्होंने डांटा। और उसके बाद बोले कि यार कुछ करना है ना लाइफ में, तो थोड़ा पेन लेना सीखो। मतलब वो और ड्रीम देखे हो तो उसको सही करना सीखो। उसके लिए हो सकता है कुछ दिक्कत आए, कुछ ये आए, इस तरह से। तो हम लोग, मेरा एक्सपोजर सर से इस तरह से था, मतलब कि जो ज़्यादा करीब हम उस टाइम पे आए, और वो दिन था। और आज मैं आपके सामने हूँ। फिर मैंने क्लियर भी किया एग्ज़ाम भी, और इन बिटवीन भी कुछ चीज़ें क्लियर की। लेकिन उन्होंने IB में, उसके पहले मैं था इंटेलिजेंस ब्यूरो में, कुछ दिन तक सेवाएं भी दी, और उस टाइम भी मैं टच में था सर के, काफ़ी टच में रहे। और उस टाइम भी उन्होंने कहा कि जो सपना लेके गए हो वो बनना। चलो ठीक है, IB में हो, बढ़िया है, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, बट स्टिल आप ये करना। प्रांत प्रचारक होके गया। 11 में यहाँ से फिर बम्बई चला गया, बड़ौदा चला गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3 स्टेट का इंचार्ज बन गया। मैं JNU मेरे से छूट गया बिल्कुल।
जेएनयू के किसी भी कार्यकर्ता से कभी कोई एक आध बार फोन होया तो हुआ, नहीं तो छूट गया। उसी में रवि खो गया हमारे से। रवि ने प्रोफेशनल विकास किया, बढ़ते गए। मुझे पता लगता था कभी कभी रवि लेक्चरर हो गया है अरुणाचल में। वहाँ से वो बीएचयू में, एक बार पता लगा मुझे बीएचयू में कि वो बीएचयू में आ गया है। कोशिश की मैंने मिलने की उनसे, लेकिन तब तक उसकी शादी हो गई थी। अब शादी हो गई थी तो मेरा भी थोड़ा वो जो होप थी, मेरे को जो आशा थी कि प्रचारक बनेगा, पूर्णकालिक बनेगा, वो थोड़ा कम होगी। शादीशुदा हो गया तो अब क्या करेगा, मेरे लिए बेकार हो गया। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु बाद में मैं दिल्ली में था, दिल्ली मेरा केंद्र था, भारत विकास परिषद का काम मेरे पास था। शायद वंदना जी का फ़ोन आया या किसी ने बताया कि रवि चला गया। बंधुओं, मैं एक छोटी सी फीलिंग बताता हूँ आपको। आप सब पढ़ते हैं, पढ़ाई आपकी धरोहर है। आप प्राध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, आप गृहस्थी हैं, बच्चे आपकी धरोहर है, अध्यापन आपकी धरोहर है। यू आर प्रोफेशनल एज ए टीचर। मैं प्रचारक हूँ, मेरी कोई धरोहर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है समाज में। क्या है, ऐसे एक एक व्यक्ति चुन करके जो आगे बढ़ाया जाता है, वही मेरा है। उसी को मैं अपनी प्रॉपर्टी मानता हूँ, उसी को मैं अपनी धरोहर मानता हूँ कि मेरे जीवन के अंत समय में मैं जब मरूंगा, उस समय मेरे ध्यान में आया कि मेरे पीछे मेरी अपनी धरोहर कितनी है। और उसमें से जब कोई चला जाता है, उस पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। वो प्यार, वो स्नेह, वो अपेक्षा, वो सभी टूट जाते हैं। रवि के जाने से वही एक झटका था। जेएनयू मेरा प्रारंभ का कार्य क्षेत्र है, मेरे लिए पुण्य भूमि है जेएनयू, जहाँ से मैंने अपना प्रचारक का जीवन प्रारंभ किया। यहाँ दो कार्यकर्ता थे, रवि और एक हिमाचल के आईपीएस ऑफिसर थे। छत्तीसगढ़ में उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नरेश वर्मा, उसकी पत्नी रेलवे में अधिकारी थी, है अभी भी। वो मिलता रहता था उसको। इसी पर आने वाले अनेकों वर्षों तक रवि का नाम रहेगा, रवि के बारे में जानकारी रहेगी। रवि की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमारे हृदय में भी रहेंगी। और हम थोड़ा सा पूर्ण नहीं हो सकते, हम उनके उन सारी मेहनत, काम, उस सारे से पूर्ण नहीं हो सकते। हम ऋणी हैं उसके, वो हमको ऋणी करते गया है। लेकिन एक छोटा सा प्रयास उसकी आत्मा को, उसके व्यक्तित्व को जीवित रखने के लिए, जेएनयू में जीवित रखने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। मैं आज उसकी इस पुण्य तिथि पर ये घोषणा करता हूँ कि अगले साल से भारत विकास परिषद की ओर से रवि के लिए एक फेलोशिप, उसकी एक छोटी सी कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी किसको फेलोशिप देना है, और एक फेलोशिप रवि के नाम से यहाँ प्रारंभ करेंगे। ऐसा एक इस पुण्य दिवस को मनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आकर के दो शब्द बोल करके और कुछ ऐसा करके हम रवि को जीवित नहीं कर सकते। एक बात ये कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी एक वक्ता ने कहा है कि उनकी पत्नी और बच्चे आज परेशान हैं, ऐसा शायद मजर ने कहा। मैं नहीं जानता, मेरा परिचय नहीं है उनकी पत्नी से या उनके बच्चों से, मेरा परिचय नहीं है। मैंने बताया कि मैं तो उनकी एक ही मेरी नज़र थी उन पर कि वो प्रचारक कैसे बने। उसके बाद मेरा संपर्क संबंध नहीं रहा, और मेरा संपर्क संबंध उसकी शादी से पहले हो जाता तो निश्चित रूप से वो प्रचारक जाता, और शायद आज प्रभु को कोई और इच्छा होती है। तो भी एनी हाउ, दूसरी बात यह है कि हम
उनके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके अभाव को हम वो नहीं कर सकते जो रवि जी कर सकते थे, लेकिन एक पिता होने के नाते, भाई होने के नाते, उसका साथी मित्र होने के नाते से हम उस परिवार की क्या मदद कर सकते हैं, इस पर भी कोई वर्कआउट करना चाहिए और उस परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। सबसे निकट उसकी आत्मा अगर कहीं प्रकृति में है, आत्मा सो परमात्मा ऐसा कहते हैं, तो वो उस की पत्नी और बच्चे उनके इर्द गिर्द निश्चित रूप से रहती होगी और वो उसके बारे में कुछ कष्ट होता है, दुख होता है, तो निश्चित रूप से वो भी दुखी रहता हुआ। तो दूसरा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें वंदना जी या बिहारी जी देख करके कैसे उस परिवार की हम और अच्छी संभाल कर सकते हैं, अच्छा, और कैसे उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उसकी पत्नी को ऐसा लगे मेरे पिता भाई सब हैं अभी और वो मेरी चिंता कर रहे हैं, ऐसा उसको फील होना चाहिए। तो रवि जी की आत्मा इससे खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी और प्रभु के चरणों में भी है तो भी वो इस बात से और अधिक आनंदित होगी। ऐसा कुछ काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सेवा कार्य कोई आगे देखेंगे, रवि के नाम से कोई विद्यार्थी, यहाँ के विद्यार्थी परिषद में कुछ कोई ऐसा चेयर या कुछ ऐसी चीज़ कर सकें तो विद्यार्थी उसके लोग देखेंगे कैसा वो उसका है। लेकिन भारत विकास परिषद की ओर से हम एक फेलोशिप उसके नाम से शुरू करेंगे अगले साल से। तो ऐसा मुझे लगता है कि रवि जी की श्रद्धांजलि जो कहा जाए ये रहेगी, एक बेस्ट श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सार्थक कुछ इस प्रकार का क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो एक महत्वपूर्ण काम है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में भी आज आप सब आए हैं, रवि जी के कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, रवि जी के एक फेलो हैं, हम सब साथी हैं, तो यही रवि जी के लिए एक बहुत बड़ी और एक श्रद्धांजलि है कि हम सब ने मिलकर के तीसरी पुण्यतिथि मनाई है। चौथी पुण्यतिथि आने से पहले हम कुछ न कुछ रवि के बारे में ऐसा कर सकें कि अधिक लोग उनको जाने, अधिक लोग उनके बारे में सोचे समझे, ऐसा जरूर करना चाहिए। इतना कह करके मैं भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि रवि की आत्मा को जो कि इस योग्य है वो भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए, मोक्ष प्राप्त होना ही चाहिए, वो ऐसे श्रेष्ठ आत्मा थे। तो मैं प्रभु के चरणों में और ऐसा निवेदन करता हूँ कि रवि की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। नमस्कार। 2 मिनट लूँगा। आज से करीब 30 साल पहले 1995 में जब सबसे पहले मैं दिल्ली आया तो भैया के साथ ही आया था और JNU में आया, साबरमती हॉस्टल, और तभी मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया क्रिमिनल कॉलेज से। उसके बाद मैंने PG किया जर्नलिज्म में साउथ कैंपस से। उसके बाद मैं लगातार करीब 22-23 सालों से मैं जर्नलिज्म में हूँ और एक अभी चैनल में संपादक हूँ। मैं चाहता था उनके जाने के बाद उनका दो ऐसे जगह हैं जो BHU और JNU जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ वो पढ़ा रहे थे, कि वहाँ कम से कम जो उनके चाहने वाले, जो उनके मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ ये कार्यक्रम हो जहाँ उनके किए हुए काम को याद किया जा सके। उन्होंने जो योगदान दिया विद्यार्थी परिषद, पढ़ाई के अलावा जो विद्यार्थी परिषद के लिए, संघ के लिए जो उनका योगदान था, उसको याद किया जाए। तो पहले साल में तो BHU में हमने कार्यक्रम किया था, स्मृति सभा रखा था हमने। दूसरे साल किसी वजह से नहीं कर पाए। तीसरे आज ये तीसरी उनकी पुण्यतिथि है, तो हमने चर्चा की थी मजहर भैया से कि भैया हम चाहते हैं, बहुत कम समय में, करीब 4-5 दिन पहले बात हुई थी, भैया हम चाहते हैं कि JNU में इस बार हो, और संडे का दिन है, मुश्किल होगा लेकिन हम चाहते हैं कि हो। और क्योंकि जब संघ और विद्यार्थी परिषद की बात आती है
तो बाकी जो भैया के मित्र थे और उनके जानने वाले थे, अमूमन सभी लोगों को मैं भी जानता था, क्योंकि मैं करीब साल भर यहाँ पर था और कई महीनों तक तो मैं बिहारी जी भैया के साथ उनके कमरे में था, जिसको इलीगल गेस्ट कहते हैं। तो कुछ दिन था, फिर उसके बाद मैं चला गया फिर अपने नॉर्थ कैंपस पे, वहाँ पे रहा। लेकिन ये मेरा मन था कि जेएनयू में हो जाए, और एक जो उनके सहयोगी, जो उनके जो सहपाठी थे, उसके अलावा एक नाम मुझे हमेशा याद रहा पूरे अपने जीवन में जब से दिल्ली आया, वो है सुरेश जी का नाम। सुरेश जी का नाम जितना यहाँ पर चर्चा होती होगी, उससे ज़्यादा हमारे घर पे भी होती थी, क्योंकि भैया बहुत चर्चा करते थे सुरेश जी का। मेरी बहन भी आई थी उस वक्त भी, सुरेश जी ने बहुत उस समय उनकी मदद मिली थी। और कई किस्से हैं, कई चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में हम बताएं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो मेरी दिली इच्छा थी, अब उसके बाद चौथी पुण्यतिथि में हम क्या करते हैं नहीं करते वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि बीएचयू के बाद जेएनयू में भी एक ऐसा कार्यक्रम हो जहां हम अपने सभी लोग आएँ, और ख़ास तौर से बाकी जो लोग हैं, सुरेश जी को लेके था कि आप आएँ, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है उस साबरमती का 250 नंबर कमरा, 250, हम लोग बैठे रहते थे और आते थे सुरेश जी और बात होती थी संगठन की। तो हम लोग दूर में बैठे होते थे, हम लोग सुनते रहते थे कि अच्छा क्या बात हो रही है। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी अचानक से दिल्ली आना, दिल्ली आने में भी जेएनयू आना, तो यहाँ का कल्चर और बाकी जगहों का कल्चर बहुत अंतर था। अब समझ में आता है, उस वक्त तो और मेरे लिए नया था। तो वो सारी जो संस्कार, जो कहते हैं ना कि वो संस्कार पड़ा, वो संस्कार वहीं से पड़ा। और कई बार तो जब पुष्कर जी जब चुनाव लड़ रहे थे प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, मुझे याद है कि उस वक्त भी अब साथ में जब रैली या मार्च निकला करता था रात में या दिन में, तो हम लोग साथ में हुआ करते थे। तो विद्यार्थी परिषद के लिए जितना भैया काम करते थे रात में पोस्टर बनना, तो साथ साथ में हम लोग भी खड़े होते दूर से देखते थे। भैया वो ब्रश लेके कोई हाथ से लिखता था, भैया ब्रश से लिखते थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ऐसा लगता था कि वो छप के निकल रहा है प्रिंटिंग प्रेस से। तो एक हुनर था, वो पेंटिंग अच्छा करते थे। और बाकी जो उनके बारे में कहना था, जानना था, मेरे से बेहतर बाकी लोगों ने कह दिया और जानते थे। मेरे लिए तो आदर्श आज जो कुछ मैं भी यहाँ पे हूँ, बड़ा सामान्य से विद्यार्थी था, उसको भी दिल्ली लेकर आना, एडमिशन कराना, प्रोत्साहित करना, पढ़ाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ। और सुरेश जी ने जो कहा है मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर उनके नाम से फेलोशिप होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने ऐसा सोचा, और ये होगा तो आगे और भी अच्छा करेंगे। आप सभी लोग आए सूर्य जी के साथ, मजहर भैया, बिहारी भैया, वंदना जी, प्रेम भैया, बाकी तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे भी कुछ मित्र हैं, कुछ मीडिया के मित्र हैं। आप सभी लोग आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि फिर अगले साल हम लोग इस स्मृति सभा में मुलाकात करेंगे, मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, और आपका आशीर्वाद रहा सर तो कुछ होता है। हम इस स्मृति सभा से पहले एक बार उन्हीं की स्मृति में भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत माता के वो सपूत थे, भारत के लिए उन्होंने कार्य किया, भारत के बोध को उन्होंने दिशा दी। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाहर चाय है आपको? हाँ, आपको मीडिया का प्रमुख ठीक है। आप प्राइम न्यूज़ में हैं ना? हाँ मिलना, ठीक है, अच्छा मिलना।